Well, our journey started way back in 1978, and we were one of the first diagnostic centers in Delhi, providing both pathology and radiology services under one roof. Breakup, what is the percentage breakup of B2B, B2C, and B2G in the current revenue structure? We operate in three segments. Basically, the B2C segment is a business to customers directly, in which we cater to our local doctors and our local patients. Sir, what could be the broad level of utilization levels? I mean, first, if you could tell us where the centers are located also. तो अभी हमारा प्रिडोमिनेटली B2C सेक्टर में दिल्ली में ही प्रेजेंस है, जिसमें एक सेंटर हमारा पूसा रोड में है, एक तिलक नगर में है, एक विकासपुरी में है और एक नजरगढ़ में है. Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, in these episodes, as all of us are aware, we discuss emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps us to get a lot of valuable information as regards the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, investors get good information which they can use to take a very conscious investment call to invest in such companies. And friends, today we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Star Imaging and Path Labs Limited. And I have the privilege of having the chairman and managing director, Mr. Pawan Gupta. Pawan ji, बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir, for your time. We can start the interview now, but I am quite sure, sir, in this small interview, we'll be able to understand your company in a much better way. Thank you so much, Avinash, and hello, friends. Yeah. Well, our journey started way back in 1978, and we were one of the first diagnostic centers in Delhi, providing both pathology and radiology services under one roof. At that time, there were very, very basic services available in the form of very few blood tests and just an X-ray in the radiology. So since then, our journey has been pretty eventful, and we converted our company to a private limited company in 2004, and finally we started working in it in 2011. But during this journey, we incorporated a lot of technologies, etc. And today we offer a wide bouquet of blood tests, hematology, microbiology, biochemistry, etc., and a host of radiology services, ultrasounds, X-rays, urology, cardiology, CT, MR, etc. So, sir, we just wanted to understand if you could tell us, within our business model, how much of it comes from B2B? What is the percentage of B2C? You do a little bit of government business. So, sir, if you can just give us a broad breakup, what is the percentage breakup of B2B, B2C, and B2G in the current revenue structure? We operate in three segments. Basically, the B2C segment is a business to customers directly, in which we cater to our local doctors and our local patients. The other model that we operate in is a B2B segment, in which we provide services to the local nursing homes and hospitals, the services that they do not have in-house. Some high-end services, maybe in pathology, maybe in radiology like CT scan, MRI, etc. Those kind of services we provide in a B2B model. And in the B2G model, this is where the government comes out with P2P, public to private partnership tenders, in which we participate. And today we are in 20 locations under that segment. Okay. And typically, sir, what is the repeat business you get from all these segments? Like repeat business हमारे लिए कितना होगा? देखो B2C सेगमेंट में तो हमारा करीब 30 to 40% रिपीट बिजनेस होगा, क्योंकि ये ओवरऑल इतने सालों की लेगेसी बनी हुई है, जिसमें पहले दादा परदादा अपने टेस्ट करा के गए हैं, अब बच्चे करा रहे हैं. सो इट इज अ लेगेसी बिजनेस. सो इट इज लाइक नॉट ओनली दैट वन पेशेंट इज रिपीटिंग हिमसेल्फ, बट हिज फैमिली इज आल्सो रिपीटिंग देमसेल्व्स. So that is the repeat customer in our B2C segment. In the B2G segment also, जो भी पॉजिटिव केसेस निकल के आते हैं, उनका एक फॉलोअप स्कैन एक्सेट्रा वो जरूरी होता है. सो दैट देयर इज अ रिपीट कस्टमर इन द B2G सेगमेंट आल्सो. ओके, नहीं समझ गया. पंकज जी, मुझे एक बात बताइए कि सर हमारे कितने सेंटर्स है और हमारा
ओवरऑल यूटिलाइजेशन अगर हम कहें कि भाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो नॉर्मली हम पूछते हैं, सर व्हाट कुड बी द ब्रॉड लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स? आई मीन फर्स्ट इफ यू कुड टेल अस वेयर द सेंटर्स आर लोकेटेड आल्सो, आर दीस लोकेटेड पैन इंडिया और टिपिकली दिल्ली यूपी इज योर मेन डोमिनेंट काइंड ऑफ मार्केट, तो वहीं पे ज्यादा है? तो अभी हमारा प्रिडोमिनेंटली B2C सेक्टर में दिल्ली में ही प्रेजेंस है, जिसमें एक सेंटर हमारा पूसा रोड में है, एक तिलक नगर में है, एक विकासपुरी में है और एक नजरगढ़ में है। मैं बोल रहा था सर टोटल हमारे कितने हैं सेंटर्स? टोटल हमारे करीब 25 सेंटर हैं, अच्छा ओके, इंक्लूडिंग B2G। अच्छा B2G और ये अच्छा। और सर मेरे को एक बात बताइए कि हमने देखा है कि ज्यादातर हमारा जो रेवेन्यू आता है वो रेडियोलॉजी से आता है, उसके बाद पैथोलॉजी से आता है, तो यही ट्रेंड आगे भी चलेगा? यानी आपके हिसाब से यही डोमिनेंट मार्केट का रिक्वायरमेंट है जो आप केटर कर रहे हो? हमारे में और कुछ बाकी जो हमारे पेयर्स हैं उसमें थोड़ा यही फर्क है कि वो ज्यादातर पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम थोड़ी रेडियोलॉजी सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम हाई एंड रेडियोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, हमारा फोकस मेनली ये रहा है कि हम लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी रेडियोलॉजी में अवेलेबल है वो लाके अपने पेशेंट्स को ज्यादा अच्छी तरह सर्विस कर पाए। ठीक, समझ गया। सर यूपी एंड दिल्ली आर द मेन डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मैं आपके प्रोस्पेक्टस और प्रेजेंटेशन को देख रहा था, काफी बड़े मार्केट्स है, लेकिन आगे चल के सर एनी प्लान्स फॉर द कंपनी टू इंक्रीज देयर एक्सपोजर ज्योग्राफिकली आउटसाइड दीस टू स्टेट्स आल्सो? ये दो स्टेट्स के बाहर तो भी हम कुछ काम करेंगे? हम दोनों ही सेगमेंट्स में इसमें काम करने के हमारा प्लान्स है। इन B2C सेगमेंट जो हमारे प्राइवेट सेंटर्स हैं उसकी भी हम ग्रोथ दिल्ली से बाहर कर रहे हैं, सो वो B2C सेगमेंट में है। और जो B2G सेगमेंट है, जैसे अभी हम यूपी में प्रेजेंट हैं और एक महाराष्ट्र में भी सेंटर है हमारा, तो वैसे ही हम जो भी अभी टेंडर्स और आ रहे हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इफ वी विन दोस वी विल बी एंटरिंग अदर स्टेट्स आल्सो। फॉर एग्जांपल अभी एक हरियाणा का टेंडर चल रहा है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे को बताइए, आई वाज वांटिंग टू नो सर ऑन द गवर्नमेंट पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो हम गवर्नमेंट का P2G काम करते हैं, सर इसका नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड कितना लंबा होता है? हाउ मेनी इयर्स इज द कॉन्ट्रैक्ट? इज इट 2 years, 3 years? व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन? इसमें मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड करीब 7 साल का होता है, विच इज अगेन एक्सटेंडेबल बाय 3 to 5 years एज पर टेंडर कंडीशंस। कोई टेंडर 7 साल का होता है, कोई टेंडर इनिशियली 10 साल का होता है, एक्सटेंडेबल फर्दर बाय 2-3 years। So, but minimum tender is for 7 years. एंड टिपिकली पवन जी, इसमें प्राइसिंग कैसे होता है? लाइक यू सप्लाई द इक्विपमेंट, पेशेंट्स कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा जहाँ पे आप इक्विपमेंट लगाते हो, वहां पे पेशेंट्स आते हैं, बट सर प्राइसिंग कैसे वर्कआउट होता है? लाइक हाउ डू यू गेट योर प्राइसिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट्स? इसमें गवर्नमेंट के दो तरीके के टेंडर होते हैं बेसिकली। एक में जिसमें हमें मशीन भी लगानी होती है और पेशेंट्स भी करने होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ करनी होती है, तो उसके लिए बिडिंग प्रोसेस अलग होता है, उसके लिए प्राइसिंग अलग होती है, एंड इट इज बेसिकली ऑन अ प्राइस बिड दैट वी विन द टेंडर। दूसरा मॉडल होता है जिसमें गवर्नमेंट के पास मशीन ऑलरेडी लगी हुई है लेकिन उनके पास ऑपरेशंस के लिए मैन पावर एक्सेट्रा नहीं है, तो उसके लिए वो टेंडर निकालते हैं, तो उसमें मैनेज एंड ऑपरेट में हम बिड करते हैं। ऑब्वियसली उसके प्राइसिंग थोड़ी दूसरे टेंडर से कम होती है जिसमें हमारा कैपिटल नहीं लगता। नहीं समझ। सर अभी थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताइए पवन जी, कि ओवरऑल ये जो मार्केट है, हमने देखा है बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ हमने डायग्नोस्टिक सेंटर के बिजनेस पे देखा है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करते हैं, आप भी काफी ओल्ड एस्टेब्लिश प्लेयर हो, तो मुझे बताइए सर अगले 3, 4, 5 साल में जिस प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, सर व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रो? आई मीन अपने लिए रनवे कितना बड़ा है, बोथ फ्रॉम द पैथोलॉजी एंड द कुछ रेडियोलॉजी बिजनेस? कुछ हद तक तो आपने जवाब खुद ही दे दिया कि ये कह के कि जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है उससे डिजीजेस बढ़ रही हैं। सो एक तो देखो इसमें दो कारण है, एक हमारे लाइफस्टाइल से डिजीज बढ़ रही हैं और एक जो हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह में जो एडवांसेस आई हैं उससे हम जल्दी डिजीजेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं और नई नई डिजीजेस को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। सो दोनों ही वजहों से हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग, एंड मतलब कोई अच्छी बात नहीं है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, बट वट एवर इट इज। So अब इसमें we are going into cancer and genomics also. We will be installing a PET CT scan and we'll be entering genetics in pathology also. So ये सेक्टर तो ग्रो ही कर रहा है। बिल्कुल। ये सवाल जो आपने आंसर दिया सर, इसके बाद मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपके प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था कि सर अभी आप
बेसिकली एक्सपांड करने वाले हो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड जेनोमिक्स में। तो सर इसके बारे में हाँ थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए, इसका व्हाट इज दिस सेगमेंट ऑल अबाउट, ये कितना बड़ा है, मार्केट पोटेंशियल कितना बड़ा है, सर इसके बारे में बताइए। देखिए, ये अभी मार्केट पोटेंशियल इसका बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये अभी भी नेसेंट स्टेज पे है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नई नहीं है, टेक्नोलॉजी को आए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन इसकी अडॉप्शन थोड़ी शुरू हुई है कोविड के आने के बाद, जिसमें लोगों को थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। उनको समझ में आया कि आरटी-पीसीआर क्या होता है, जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, एक्सेट्रा। तो उसी बेसिस पे जो भी कैंसर वगैरह की ज्यादातर टेस्टिंग होती है, वो हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है। तो उसमें अगर हम अर्ली जेनेटिक्स करा लें, तो उसमें अगर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है एक्सेट्रा, सो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ टू सम एक्सटेंट। सो ये हाँ, सो दिस इज बेस्ड ऑन टोटल ऑन अवेयरनेस, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, और स्पेशली कोविड के बाद दो सेक्टर्स में स्पेशली अवेयरनेस आई है। एक ये जेनेटिक्स एक्सेट्रा में, ऑन कैंसर में, और दूसरा होम केयर में, कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो होम केयर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। No, no, I think very nicely articulated, पवन जी। पवन जी, मेरे को एक बात बताइए, ओवरऑल फाइनेंशियल्स हम बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन मुझे बताइए सर, इतने सारे प्लेयर्स है, काफी कंपटीशन है, लेकिन फिर भी हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स? हमारे यहाँ पे लोग रेगुलरली आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो व्हाट इज इट दैट यू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स, इन क्वालिटेटिव टर्म्स, इफ आई वर टू आस्क यू कि सर हम हमारा काम दूसरों से बेहतर कैसे करते हैं, व्हाट कुड बी वन और टू पॉइंट्स व्हिच यू कुड लाइक टू हाईलाइट फॉर अस? सर देखो, इतने सालों की जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, स्पेशली हेल्थ केयर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी पे ही हो सकती है। आपकी अगर कुछ भी गलत रिपोर्टें अगर जाती हैं, तो वो डायरेक्टली पेशेंट्स को अफेक्ट करती हैं। सो यू कैन नॉट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द मार्केट इफ यू आर गिविंग आउट बैड क्वालिटी रिपोर्ट्स व्हिच आर अफेक्टिंग पेशेंट्स लाइव्स। सो दैट इज वन थिंग दैट वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। हमारा मोटो ये रहा है कि दूसरों को वो दो जो खुद के लिए आप चाहते हो। So the technology wise, quality wise, we always try to do what is best for the patients. मतलब हमारे खुद के, फैमिली के, सबके हम टेस्ट अपने अपने यहाँ ही होते हैं, तो क्वालिटी इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। No, I think this is very important. I think you're right, absolutely right कि हेल्थ के साथ कोई चांस लेगा नहीं. I think this is very very critical. So this point is very duly accepted. इसी में अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो वी हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट इन ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजीज लाइक डिजिटल एक्सरेज, 4D अल्ट्रासाउंड, 5D अल्ट्रासाउंड, first non-invasive coronary angiography in North India. Even before Gangaram and All India Institute, we were the first ones to bring in non-invasive coronary angios. So we've been ahead in technology, and वो सब कुछ उसी से stem करता है that what best we can do for our patients. But I think you're right. I mean, technology is going to be a very key differentiator, which is very important, in this industry. Pawan ji, मुझे बताइए अभी basically, I was just looking at your financials, sir. FY24 has been very good. In fact, I was just seeing the top line, sir, 78 crores, जो पिछले साल 58 crores था, और प्रॉफिट सर आपका बहुत तगड़ा बढ़ा है, करीबन 12.48 करोड़। सर 23 में ऐसा क्या हो गया था कि प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन था, लेकिन 24 में यू रिकवर्ड एंड बाउंस बैक वेरी स्मार्टली। सर इफ यू कुड प्लीज टेल अस सम की रीजंस फॉर दिस। सर ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे, तो एक साल उससे पहले वाज एन एक्सेप्शनल ईयर फॉर द मार्केट, बिकॉज कोविड का टाइम था। सो उसमें अगर आप फाइनेंशियल्स में अगर थोड़ा ध्यान देंगे, तो द स्पाइक वाज स्पेशली इन द पैथोलॉजी रेवेन्यू, जो कोविड जाने के बाद एकदम से ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू ड्रॉप, एंड इट ड्रॉप्ड, बट वी स्टेबलाइज बिजनेस एक्सेट्रा। कोविड के बीच में खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए थे, सो वी स्ट्रीमलाइन दोज आल्सो, and then we stabilized the business and we recovered, and today we are doing again fine. And in this period, we got a couple of government tenders also, so that increased our business. सर FY25 में तो जो नंबर्स अभी तक आपने प्रोस्पेक्टस में प्रेजेंट किए, आई थिंक नंबर्स देयर हैव आल्सो बीन वेरी सॉलिड। आई थिंक यू हैव डन इन द फर्स्ट हाफ 42 crores and a profit of almost 6.21 crores. So can we expect that the same momentum has been maintained for the full year? That is, अभी तो of course FY25 खत्म हो चुका है, but broadly can we expect the similar momentum or slightly better? Similar or better. So basically, runway, I mean, the momentum is positive. I can take this from you. Absolutely, absolutely, yes.
ठीक। अच्छा सर, मेरे को बताइए हमारे बिजनेस में सर नॉर्मली व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल, बिकॉज सी जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन पवन जी, कि हमारा कैश फ्लो अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा है, बट समवेयर आई थिंक वी हैव बीन गिविंग लिटिल हायर क्रेडिट पीरियड्स फॉर आवर कस्टमर्स, काफी पैसा डेटर्स में अटका है। तो सर इज इट बिकॉज ऑफ कंपटीशन दैट दिस इज हैपनिंग, एंड नॉर्मली व्हाट्स द वर्किंग कैपिटल साइकिल इन आवर बिजनेस? ओके, सो मैं आपका दो पार्ट में क्वेश्चन है आपका। पहले डेट साइकिल की थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कैपिटल की बात करते हैं। तो डेट साइकिल में जो आप देख रहे हैं वो ज्यादातर हमारा जो पैसा अटका हुआ है वो गवर्नमेंट में अटका हुआ है। इट इज नॉट हाँ, ऑन दी प्राइवेट मार्केट। गवर्नमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली टेंडर्स में जो कंडीशंस होती हैं उसमें पेमेंट साइकिल इज मेंशन्ड एज 45 टू 60 डेज नॉर्मली। ओके, लेकिन इफेक्टिवली जो देखा गया, हमारा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि करीब करीब 4 से 6 महीने लग ही जाते हैं हाँ, टू गेट योर पेमेंट्स आउट। एंड उसमें भी अगर बाई चांस ईयर एंड है, उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है, तो उसमें कभी कभार डिले हो भी जाती है। एंड देयर आर समटाइम्स सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस व्हिच we've gone through also in the past, which are being resolved now and recoveries are happening, but that is one of the reasons that गवर्नमेंट में स्पेशली आपका थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप क्या, पंकज जी, मुझे सॉरी, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताइए। प्राइवेट सेक्टर का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, सिर्फ गवर्नमेंट में मैं आपकी बात पूरी तरह से मानता हूँ कि आपने जो कहा वो लॉजिकल है, बट प्राइवेट सेक्टर में सर डज द मनी कम ऑन टाइम? लाइक टिपिकली आपका B2C बिजनेस तो इट मस्ट बी ऑन अ रेगुलर कैश पेमेंट बेसिस। mostly B2C businesses are cash business. B2B might have a small credit cycle, but that is also like 45 to 60 days max. ओके, ओके, देन आई अंडरस्टूड। आई थिंक वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय यू। पवन जी, अभी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे सर, वी आर गोइंग पब्लिक। इट इज अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन फॉर यू एंड योर कंपनी, बिकॉज आपकी मेहनत रंग लाई है। सर मुझे बताइए कि व्हाट इज द ओवरऑल अमाउंट व्हिच वी प्लान टू रेज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, एंड व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट विल यू यूज these funds for? So approximately we are raising around 70 crores odd, and mainly the purpose of raising these funds is to settle few of our debts, and for the future expansion of the company, we need a working capital. Like you see, there is a debt cycle involved in our payment terms, etc. So to grow exponentially, we do need working capital, and our business is capital intensive. तो उसका ब्रेक इवन पीरियड 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल रहता है, डिपेंडिंग ऑन किस सेंटर में कितना कैपिटल लगाया आपने, किस लेवल की मशीन लगाई, तो उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं समझ गया। पवन जी, एक सवाल था, ये तो अभी आपने यूटिलाइजेशन समझाया, बट कैन वी आल्सो एज्यूम दैट सिंस यू ऑल हैव बीन ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन योर डोमिनेंट मार्केट्स लाइक दिल्ली, यूपी, सर आगे चल के जितना नए एरियाज में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, गवर्नमेंट के पीपीपी प्रोजेक्ट्स या नए सेंटर्स लगाना चाहते हो, जैसे आपने बोला महाराष्ट्र में आपका एक सेंटर है, कैन वी एज्यूम दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years some more centers will be coming up from your company side? Definitely they will be coming up in both the sectors, in B2C में भी हमारे जो दिल्ली एनसीआर के सेंटर्स जा रहे हैं वो हैं, प्लस जहाँ पे हमारा B2G का भी सेगमेंट चल रहा है उसमें भी वी आर सेलेक्टिंग अ फ्यू सिटीज इन विच वी विल बी एंटरिंग द B2C मार्केट ऑल्सो। और B2G का तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी भी हम वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टेंडर, एंड वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूचर टेंडर्स एज एंड व्हेन वी गेट इट। स्टेट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, वी विल बी एंटरिंग एनी स्टेट। अच्छा, नाउ फ्रॉम द ऑपरेशनल साइड पवन जी, मुझे एक आइडिया दे दीजिए कि सर हमारे साथ कितने डॉक्टर्स, कितने सपोर्ट स्टाफ जुड़े हुए हैं, बिकॉज दिस इज योर हार्ट ऑफ द काइंड ऑफ सॉल्यूशन, दीज आर द पीपल हु एक्चुअली डिलीवर सॉल्यूशंस टू योर कस्टमर। सो सर कितने परमानेंट एम्प्लॉइज हमारे साथ है, कितने लोगों के साथ हम आउटसोर्सिंग करते हैं सो दैट वी कैन टेक द सर्विसेज एंड गिव इट टू आवर क्लाइंट्स? तो करीब करीब हमारे ऑन रोल एम्प्लॉइज 200-210 के आसपास हैं। इसमें हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर्स और इंटरनल टेली रिपोर्टिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, लाइक आई सेड वी हैव बीन लीडर्स इन टेक्नोलॉजी, तो ये सारे हमारे इंटरनल खुद के डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं और सब हम इंटरनली हेड ऑफिस से मैनेज करते हैं। अच्छा, सर एक सवाल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस नाउ यू आर गोइंग पब्लिक, पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू, दे विल बिलीव यू बिकॉज यू हैव डिलीवर्ड अप टिल नाउ। सर व्हाट वुड बी योर ब्रॉड मैसेज टू द न्यू शेयर होल्डर्स हु आर गोइंग टू जॉइन यू इन योर ग्रोथ जर्नी? सर उनके भी एक्सपेक्टेशंस है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव विदाउट गिविंग एनी नंबर, what could be the kind of broad message, Pawan ji, जो आप उनका देना चाहते हो as a kind of a promoter who wants to, who is doing the public issue now? सर मैं तो सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी टाइप की बताना चाहूंगा
कि अभी मेरी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी कि आज की डेट में हम सबका एज ग्रुप जो हो गया है, इसमें वी एटलीस्ट फ्रॉम आवर स्कूल टाइम we must know at least 3 or 4 people in our groups that we've lost. Okay, Yeah. due to COVID, due to heart attack, due to some other issue or the other, we've lost somebody or the other in our span of lifetime till now. Okay, so अगर इसको आप ढंग से डीपली थोड़ा सोचें, so preventive health care or health care is very very important. So I don't need to say anything more that this is where your attention should be. ठीक है. आई थिंक सर आपके ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका ब्रांड है, तो लोग जरूर आपको सपोर्ट करेंगे एंड आई एम क्वाइट श्योर सर इशू आल्सो विल बी अ बिग सक्सेस. सर लास्ट क्वेश्चन पवन जी इज दैट यू हैव सीन कोविड एंड वी हैव ऑल सीन कोविड ऑफ कोर्स, बट सर इन आवर बिजनेस पवन जी यू रन द बिजनेस सो सक्सेसफुली. सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस? सर सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है जो 24/7 आप मॉनिटर करते हो? सर देखो, हेल्थ केयर में एज सच रिस्क कोई वो नहीं होता, बिकॉज हेल्थ केयर इज अ प्रीटी प्रोटेक्टेड सर्विस. सो द ओनली ऑपरेशनल रिस्क इज मशीन ब्रेकडाउन्स और जो नॉर्मल आपके डे टू डे अफेयर्स होते हैं, उसके अलावा देयर इज नथिंग बिग दैट कैन बी टर्म्ड एज अ रिस्क. Okay. So basically, you're confident that the kind of employee force you have, the kind of runway you have, you're pretty sure that the runway is very large for growth. And India is a country where medical facilities where the growth potential is very large. So that remains a big positives. It is a Bright spot. wide market. India में especially from very basic services to high end services दोनों की market है. लाइक कितनी जगह हैं जहाँ पे बेसिक सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है, और कुछ जैसे हमारे मेट्रो शहर हैं उनमें बेसिक सर्विसेज तो हैं लेकिन हाई एंड सर्विसेज की कमी है, और हाई एंड सर्विसेज में अवेयरनेस की भी कमी है. लाइक फॉर एग्जांपल नॉन इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियो एट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप हम सजेस्ट करते हैं कि हर एक को करवानी चाहिए. इट इज जस्ट अ 5 minute वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर व्हिच टेल्स यू अबाउट योर हार्ट स्टेटस. ओके, सो दोस थिंग्स आर अवेलेबल in metro cities. So that awareness is coming up and it is a huge market ahead. Well, I think very nicely articulated by you, Pavanji. So it was my pleasure to host you. And sir, thank you very much for your valuable time. Sir, my best wishes to you, your entire management team. And sir, best wishes for your forthcoming public issue also. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.